Hi, welcome back to the channel. So if you are preparing for RBI Grade B 25, 26 or 27 then this video is for you. इस एक वीडियो में अगले 25 मिनट में I'll tell you everything about pattern, syllabus, salary, eligibility which will help you kickstart for RBI within seconds. ये इन्फॉर्मेशन वैसे आपको 10 अलग अलग वेबसाइट पे जाकर शायद ना मिले जो मैं आपको एक ही वीडियो में दे रहा हूँ. Now many of you might have this doubts कि सर शायद इस बार तो ग्रेड ए आने वाला है. बिल्कुल आ सकता है. We have also been saying so, but this video is only for grade B because we believe that still even though grade A is in reckoning देर इज अ ग्रेटर चांस कि ग्रेड बी आएगा. तो ग्रेड बी के बारे में जानते हैं इस वीडियो में. अगले 25 मिनट मेरे साथ रहिए. और वीडियो शुरू करने से पहले आई लाइक टू टेल यू दैट दिस इज द गाइड बुक विच इज अ गुड वैल्यू एड टू योर प्रिपरेशन इन विच यू विल गेट कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट आरबीआई डिपार्टमेंट्स, प्रमोशंस, हायरार्की. Moreover, you will get 3 very good things which you will need in your preparation. You will get PYQs for past 3-4 years solved, right? You will get decoded syllabus and you would get detailed book list which you can use in your preparation. And you can download this guidebook for free. The link to download this guidebook is given in the description of this video. So download it today and let your preparation start with a bang. So let me start with the eligibility first. आरबीआई की एलिजिबिलिटी दो पैरामीटर्स पे कॉन्फ़िगर की गई है, एज एंड एलिजिबिलिटी. इन टर्म्स ऑफ एज इट इज़ वेरी क्लियर, यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 21 एंड लेस देन 30. मतलब आप 21 या 21 से बड़े होने चाहिए बट यू शुड बी लेस देन 30. इफ यू आर ऑलरेडी 30 यू आर नॉट एलिजिबल. एंड देयर इज अ रिलैक्सेशन ऑफ 5 years and 3 years in case of SC ST, right? And PWBD also get a relaxation of around 10 years. ठीक है. एंड एम्प्लॉयज ऑफ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स और ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, तो आप किसी भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक जैसे कि ICICI, HDFC, SBI, PNB में है, या ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे कि NHB, SIDBI, NABARD और RBI itself, then you can get relaxation for your work experience that is equal to your work experience, but maximum relaxation is 3 years. मतलब 3 साल से ज़्यादा तो मिलेगी नहीं चाहे आपका वर्क एक्सपीरियंस 10 साल का हो. और ये रिलैक्सेशन इज ओनली अवेलेबल इफ योर वर्क एक्सपीरियंस इज एट ऑफिसर लेवल एंड दैट डज नॉट काउंट probation period. So your experience only after probation, that too at officer level, would be considered for this relaxation. और क्वालिफिकेशन में कोई भी स्पेशलिस्ट डिग्री नहीं चाहिए. यू कैन बी अ ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन, hotel management, pharma, history, biology, MSc, maths, anything, but you should have minimum of 60% marks if you are from unreserved category and 50% for SC, ST and PWBD. In case you do not have 60% marks in your graduation, they give you another option that if you have done your post graduation, that too in any discipline, if you have 55% marks in your post graduation, then also on the basis of post graduation you will become eligible. And here for ST, SC, ST and PWBD you just require pass marks and not 55%. And these marks which I am talking about is the aggregate of all the semesters. So even if you have less marks, say in one semester you have 50% but overall you have 61%, you would still be eligible. बहुत सारे लोगों को ये भी डाउट होता है कि सर पोस्ट ग्रेजुएशन मैंडेटरी है क्या? नहीं, they have mentioned it as an or, this is an option. So if you are a graduate with 60% marks, you are already eligible. But in case you don't have 60% marks, then if you have done your post graduation, you can still be eligible on the basis of your post graduation if you have minimum 55% marks. कोई भी डिसिप्लिन चलेगा. बहुत लोगों को डाउट होता है कोई भी डिसिप्लिन से ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन हो सकती है. ठीक है. तो यहाँ पे ना लोग बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछते हैं दैट सर आई एम इन द फाइनल ईयर. ठीक है, मैं फाइनल ईयर में हूँ, कैन आई अप्लाई? द आंसर इज नो, यू कैन नॉट अप्लाई इन द फाइनल ईयर. यू वुड हैव टू पास योर फाइनल ईयर, यू हैव टू हैव योर फाइनल मार्कशीट. फिर बहुत सारे लोग पूछते हैं सर डिस्टेंस एजुकेशन इज इट कंसिडर्ड वैलिड? द आंसर इज यस, डिस्टेंस एजुकेशन इज कंसिडर्ड वैलिड. पोस्ट ग्रेजुएशन मैंडेटरी नहीं है, मैं रिपीट कर रहा हूँ. एंड मार्क्स आर द एग्रीगेट ऑफ ऑल योर सेमेस्टर्स. Doesn't matter even if you have less than 30% marks in one of your semester. Now let's move on to the pattern after the eligibility. Pattern में क्या है? So there are various stages: phase 1, phase 2, interview, final selection. So you pass through all these stages one by one. Or phase 1 is just qualifying. It means the marks of phase 1 are not counted in the final selection. You qualify phase 1, then you sit for phase 2. The marks of phase 2 and interview are considered for the final selection. अब अगर हम एक कंपटीशन की बात करें, एज्यूमिंग कि आरबीआई में 100 सीट्स हैं, इट कैन बी लेस और मोर, एंड 1 लाख एस्पिरेंट्स हैं, अगेन इट कैन बी लेस और मोर, बट लेट्स टेक दिस नंबर एज एन काइंड ऑफ एन एग्जांपल. तो अगर 1 लाख
एस्पिरेंट 100 सीट्स के लिए फाइट कर रहा है, तो जो फेज 2 में लोग क्लियर करेंगे दैट वुड बी इन रेशियो ऑफ 1:15. For every one seat, 15 people will be able to reach phase 2. It means people who will sit in phase 2 would be around 1500 for 100 seats, which means out of 1 lakh aspirant, 1500 will appear, which is a success rate of 1.5%. For interview, the ratio would be 1:3. So for 100 seats, 300 people would be appearing for the interview, which means the success ratio here is 0.3%. And the final result, obviously, for 100 seats, only the top 100 would make it and the success rate would be 0.1%. बहुत कम लग रहा होगा आपको, लगता है कि बैंकिंग में बहुत ज़्यादा होगा, बट इन जॉब्स लाइक SBI PO, IBPS PO, वहाँ पे भी सक्सेस रेट 1% से कम ही है, 0.2-0.4% है. ठीक है, तो अब पैटर्न ऑफ फेज 1 पे जाते हैं. फेज 1 का जो पैटर्न है, इट कंसिस्ट ऑफ 1 पेपर. ठीक है, हमने डिफरेंट फेजेस की बात की, फेज 1, फेज 2, इंटरव्यू, फाइनल सिलेक्शन. सो लेट्स डिस्कस अबाउट द पैटर्न ऑफ फेज 1. फेज 1 में एक पेपर है जिसमें 4 सेक्शंस हैं. GA 80 मार्क्स, रीजनिंग 60, इंग्लिश 30, क्वांट 30. सो टोटल इज 200 मार्क्स, 200 क्वेश्चंस. ठीक है, and the total time is 120 minutes, but this is divided into sectional timing of 45 minutes for reasoning and 25 each for GA, English and Quant. मतलब आप अपने सेक्शंस को जब करेंगे आपको इतना ही टाइम मिलेगा, आप एक सेक्शन का टाइम दूसरे सेक्शन में नहीं यूज कर पाएंगे. नेगेटिव मार्किंग भी है 1/4 की. ये पेपर आप बोथ हिंदी एंड इंग्लिश में दे सकते हैं, बट द इंग्लिश सेक्शन हैज टू बी गिवन इन इंग्लिश ओनली. बाकी सारे सेक्शंस आप हिंदी में भी दे सकते हैं. Now, what is the criteria to clear phase 1? You would have to clear the sectional cutoff. For example, in 2024, these were the sectional cutoff. That is, these are the minimum marks you would have required to clear the sectional cutoff in these sections. These sectional cutoffs vary each year depending upon the difficulty level of the paper. And you would also have to clear the overall cutoff, which is again different for different years, which is decided by RBI depending upon the difficulty level of the paper. अब यहां पे एक चीज आपको देखनी होगी कि जो ओवरऑल कट ऑफ है, इट इज जस्ट नॉट द सम ऑफ दीज सेक्शनल कट ऑफ्स. सेक्शनल कट ऑफ्स का जो सम है उससे भी ज्यादा आपकी ओवरऑल कट ऑफ होगी. ठीक है, जो ओवरऑल कट ऑफ है या सेक्शनल कट ऑफ है, मैक्सिमम वो डिफिकल्टी लेवल पे डिपेंड करती है, बट अगर नंबर ऑफ सीट्स बहुत कम होंगी तब भी आपकी ओवरऑल कट ऑफ ज्यादा जा सकती है, सेक्शनल कट ऑफ ज्यादा जा सकती है. तो ये तो क्राइटेरिया हो गया फेज 1 क्लियर करने का. अब सेक्शनल कट ऑफ, ओवरऑल कट ऑफ जनरली जाती कितनी है? सो इफ यू सी हियर, जैसे इंग्लिश में आपकी कट ऑफ इतने सालों में 4.5 और 7.5 के बीच में है, क्वांट की भी 4.5 और 7.5 के बीच में ही वेरी कर रही है, रीजनिंग की अराउंड 8 और 15 के बीच में वेरी कर रही है. So these are the ranges if you see in the last 6-7 years what we can see in the sectional cutoffs. इसका एक पैटर्न भी है, हर साल में दे वुड डिफाइन अ सर्टेन परसेंटेज ओनली आफ्टर द पेपर डिपेंडिंग अपॉन द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द पेपर. जैसे 2022 में उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि हर सेक्शन की सेक्शनल कट ऑफ 15% रख दो. मतलब 80 का 15% 12 हो गया, 30 का 15% 4.5, 30 का 15% 4.5, लाइक दैट. 2024 में उन्होंने बोला कि 25% रख दो, तो 80 का 25% 20, 30 का 25% 7.5, लाइक दैट. सो ये परसेंटेज एक वो डिसाइड करते हैं और फिर हर सेक्शन में इसी परसेंटेज के बेस पे सेक्शनल कट ऑफ डिफाइन की जाती है. ये परसेंटेज आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, दैट विल डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सीट्स एंड द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द पेपर इन द कॉरेस्पॉन्डिंग ईयर. ठीक है, ये हमारा एक पैटर्न हो गया कि सेक्शनल कट ऑफ कैसे डिसाइड की जाती है. ओवरऑल कट ऑफ जनरली सेक्शनल कट ऑफ के सम से ज्यादा ही होती है, काफी ज्यादा होती है इनफैक्ट. अब क्वेश्चन ये आता है क्या फेज 1 टफ है? फेज 1 देखिए टफ तो है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, बिकॉज इफ यू सी इन लास्ट 3-4 years द कट ऑफ्स आर consistently been in the range of 55 to around 70, which is very low considering the overall weightage of the exam is 200. तो एग्जाम मुश्किल है, बट मैं यही बोलूंगा कि योर कॉम्पिटिशन इज ओनली विद यू. इफ यू सी इट फ्रॉम अ डिफरेंट एंगल, आपको 200 में से अगर 65-66 मार्क्स चाहिए, दैट इज 33%, विच इज़ नॉट अ वेरी हाई परसेंटेज. मतलब ये पास मार्क्स होते थे हमारे 10th और 12th में. तो अगर आप इतने मार्क्स भी नहीं मैनेज कर रहे हैं, इफ़ यू आर अ सीरियस एस्पिरेंट, देन देयर इज सम प्रॉब्लम विद योर स्ट्रैटेजी. पढ़ ही नहीं रहे हैं तो शायद 10 नंबर भी नहीं आएंगे, बट अगर पढ़कर भी एग्जाम में 66 मार्क्स नहीं आ रहे हैं, देयर इज सम प्रॉब्लम विद योर स्ट्रैटेजी. लुक इनटू दैट, करेक्ट इट. तो अभी हम फेज 2 की बात करेंगे. ठीक है, फेज 1 मैंने आपको समझा दिया. फेज 2 में आपके 3 पेपर होते हैं.
Paper 1 is Economic and Social Issues, which is also called ESI. Paper 2 is English, and Paper 3 is Finance and Management, which is also called FM. तीनों पेपर्स 100 मार्क्स के हैं. पेपर 1 में 50% ऑब्जेक्टिव एंड 50% डिस्क्रिप्टिव आएगा. मतलब आउट ऑफ 100, 50 मार्क्स वुड बी एमसीक्यू बेस्ड एंड 50 मार्क्स वुड बी डिस्क्रिप्टिव बेस्ड. एंड द डिस्क्रिप्टिव आंसर्स दैट यू वुड हैव टू राइट ऑन योर कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड. वो पेन से पेपर पे नहीं लिखने होते हैं. पेपर 2 इंग्लिश 100% डिस्क्रिप्टिव है, इसमें कुछ भी एमसीक्यूज नहीं आते हैं. Paper 3 FM is similar to ESI where 50% objective and 50% descriptive. मतलब 50 marks के MCQs and 50 marks descriptive. All the descriptive part in all the 3 papers has to be written using your keyboard on your computer. इसको थोड़ा अगर मैं और इलेबोरेट करूं, जो आपका इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज में ऑब्जेक्टिव पेपर आता है या FM में ऑब्जेक्टिव पेपर आता है, उसके लिए यू विल गेट 30 minutes. In those 30 minutes you will get 30 questions. 10 questions would be 1 mark and 20 questions would be 2 mark. ठीक है, जो 2 मार्कर क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े लेंदी केस स्टडी बेस्ड होते हैं. जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है ESI और FM में 50 मार्क्स का, here you will get 90 minutes each. In 90 minutes you will actually get 6 questions out of which आपको 4 करने होंगे. तो 4 क्वेश्चंस जो आपको करने होंगे उसमें से 2 10 मार्क के होंगे, 2 15 मार्क के होंगे. Descriptive English, which is 100% descriptive, you will get 90 minutes, you will get 3 questions, you will have to write an essay, précis, and you will have to also write answers to the comprehension passage. तो ये पूरा पैटर्न है. ठीक है, अब बहुत सारे लोगों को ये डाउट आता है, सर मेरा तो इकोनॉमिक्स या फाइनेंस बैकग्राउंड नहीं है, हाउ वुड आई कोप अप विद दीज सब्जेक्ट्स. देखिए, पेपर जर्नलिस्ट स्ट्रीम के लिए हो रहा है. दे आर नॉट आस्किंग यू टू बी अ स्पेशलिस्ट इन एनी डोमेन. देयरफॉर द पेपर्स दैट दे आर सेटिंग आर वेरी जेनरिक. अगर आप ठीक ठाक पढ़ के जाएंगे, कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, आई थिंक यू विल बी एबल टू मैनेज. ईच ईयर लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम नॉन फाइनेंस, नॉन इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड आर एबल टू क्लियर दिस एग्जाम. सो दैट शुड नॉट बी अ डाउट इन योर माइंड. डिस्क्रिप्टिव आंसर्स को ऑनलाइन लिखना होता है, बिल्कुल सही. मार्क्स ऑफ फेज 1 कंसिडर्ड इन फाइनल सिलेक्शन, नो, मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूं. Now let's discuss about the interview. Interview आपका 75 मार्क्स का होता है, फेज 2 300 मार्क्स का होता है, as I told you before. So the final selection marks would be calculated out of 375. 300 plus 75, 375. Now the point to note is that the interview is having a very high weightage in RBI, which is around 20%. Even if you see UPSC, वहाँ पे इंटरव्यू सिर्फ 15% वेटेज रखता है. सो 20% इज वन ऑफ द हाईएस्ट दैट आई हैव सीन in RBI, and here the variation is also huge. I've seen people getting 70 out of 75. I've seen people getting 10 out of 75. So you be very careful with your interview selection or your interview preparation. And the language of medium in your interview can be both. It can be English, it can be Hindi. Hindi is actually English, where you use a mix of words in Hindi and English. ठीक है, तो ये हमारा इंटरव्यू का पैटर्न हो गया. ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी सिलेबस फॉर फेज 1. ठीक है, तो सिलेबस में पहले फेज 1 का डिस्कस करूंगा, फिर फेज 2 का डिस्कस करूंगा. इफ यू सी दी नोटिफिकेशन, फेज 1 का नो सिलेबस is mentioned in the notification. They have just blindly given the subjects there and you would have to manage the syllabus by yourself. But based upon previous year questions and syllabus, ठीक है, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हमने देखे हैं उनसे हमने सिलेबस डिकोड किया है, दैट व्हाट आर द टॉपिक्स यू शैल बी स्टडिंग. So these are the topics that I would suggest you to study in quant. I'll not go through these topics one by one. You can just pause the video and you can note down your topics. Almost सारे topics हैं, but यहाँ पे कुछ टॉपिक्स जैसे कि ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, दे आर नॉट गिवन हेयर बिकॉज दे आर नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर RBI. ठीक है, वो यहाँ पे ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं. सो यू जस्ट फोकस ऑन दीज टॉपिक्स. SSC वगैरह वाले टॉपिक्स आप मत कीजिएगा. रीजनिंग में भी दीज आर दी टॉपिक्स. ठीक है, द वेटेज इन द एग्जाम इज मोस्टली के out of 60 puzzles would be having a weightage around 30 marks, and then the other miscellaneous topics would having a weightage of 30 marks. Other miscellaneous topics are like coding, decoding, syllogism, direction, sense, inequality, ranking, blood relation, then these cause and effect, statement, argument, which is like verbal reasoning. ठीक है, तो miscellaneous topics पे ज़्यादा जोर दीजिएगा, puzzles को थोड़ा पीछे रखिएगा. Don't leave them, but do prepare them in the end, and in the exam also don't start with the puzzles because they can be time consuming and the output can be zero.
सो दिस इज द सिलेबस ऑफ रीजनिंग, ठीक है। आप अगेन वीडियो को पॉज करके इन टॉपिक्स को लिख लीजिएगा। एंड फॉर इंग्लिश देर आर मेनी एरियाज फ्रॉम वेयर क्वेश्चंस आर आस्क्ड, लाइक error spotting, tense improvement, close test rearrangement. But these are the question types. If you want to learn these skills, you would have to learn these topics like subject verb agreement, tenses, conditional sentences, preposition, complex preposition, conjunction, advanced verbs. And in comprehension, मतलब you would have to develop that ability to comprehend things. Vocabulary में synonyms, antonyms, one word substitution, phrasal verbs, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं. So overall you need to prepare for this skill and then do practice these question types which can be solved if you have acquired the required skill. जर्नल अवेयरनेस, द फोर्थ सेक्शन ऑफ योर फेज 1 जीए, ठीक है। हमने क्वांट रीजनिंग इंग्लिश डिस्कस कर लिया है। जीए की बात करूं तो इट्स अ वेरी वास्ट थिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल जीए आपको 3 से 5 महीने की पढ़नी है। मोस्ट ऑफ पीपल डू कीप रीडिंग फॉर 6 months 9 months. See, that is not achievable in my view. So just go for 3/5 months because I've seen over past many years, exam में 80 to 85% questions are from the immediately preceding 5 months. They are the months which gives us maximum value. अब areas कौन कौन से हैं? देखिए, schemes reports, they have a weightage of around 8 to 10 marks to 12 to 15 marks. But the most important area is RBI notifications. Over the years, its weightage has increased. RBI notifications or RBI annual report, like that. Finance current affairs are again right 8 to 10 marks. So overall we are getting around 30 marks worth of questions which are related to RBI or finance indirectly. All these are related to finance. Then ESI current affairs 8 to 10 marks. Normal current affairs, I'll explain you what these are in the coming slides. In the static part is around 5 to 7. Now I'll explain all these one by one. Schemes में क्या होता है, तो हमारी पेंशन रिलेटेड स्कीम जैसे एपीवाई एनपीएस, इनसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। फाइनेंशियल इंक्लूजन से रिलेटेड पीएम जनधन योजना, एग्रीकल्चर से रिलेटेड किसान मत्स्य संपदा योजना, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से रिलेटेड मनरेगा, आरबीआई की सवरेन गोल्ड स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है। देन सोशल इश्यूज से रिलेटेड भारतीय जन औषधि परियोजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना वुमेन और गर्ल से रिलेटेड है। एजुकेशन से रिलेटेड जैसे कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम, तो जितने भी सोशल इश्यूज हैं, हेल्थ, एजुकेशन, विमेन एम्पावरमेंट, सोशल जस्टिस, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कुछ और एरियाज हैं विच आर पार्ट ऑफ योर फेज 2 सिलेबस सच एज अर्बनाइजेशन, माइग्रेशन, पॉवर्टी एलिवेशन, एनवायरमेंट, इनसे भी स्कीम्स पूछी जाती हैं। सो दीज आर द मेन एरियाज. In one line, I would say that all these schemes which can be mapped to your phase 2 syllabus can be asked in your exam. Then there are reports, economic survey, union budget, very important. Then some reports by RBI like financial stability, RBI annual report, currency and finance report, report on trends and progress in the banking sector by RBI. Then there are certain reports by related to social issues like World Development Report by World Bank, World Economic Outlook by IMF, and then other reports which are related to your syllabus such as gender equality, environment, poverty, migration, urbanization. So like schemes, if there are reports which are related to your phase 2 syllabus, you would have to read them. That is what point 9 is saying. But apart from that, these are very specific reports. So मैंने आपको 8 reports बताई हैं, ये आपको करनी ही करनी चाहिए. RBI notifications, read them from the RBI website. They are very specifically given there, and just focus on the factual aspect. Do not go into too much technical things. Finance current affairs में regarding GDP projections, repo rate settings and inflation data they can ask you. Apart from that, any finance related current affair related to UPI, digital banking, financial inclusion, stock market, risk management can be asked. All these are basically the topics which are part of your phase 2 syllabus. In ESI current affairs also, repo rate settings, inflation projections, GDP projections can be asked, and anything which is related to your phase 2 topics such as regional economic cooperation, international economic institutions and monetary policy, etc. can be asked. Then under normal current affairs, national news, international news, defense, days in news, person in news, sports, science, technology and space, awards and honors, environment, books and authors. These are some of the areas which can be asked in your exam. ठीक है, तो ये जर्नल हैं which are asked in most of the banking exams. तो RBI में भी पूछे जाते हैं, but their weightage is less now. ठीक है,
Earlier they used to be 35 plus out of 80, but it's just now 15 to 17. And in the static part, they will ask you some basic concepts related to banking or finance, such as derivatives, bonds, money markets, inflation. And this is again related to your phase 2 टॉपिक्स. अगर आपने phase 2 की तैयारी अच्छे से कर ली है तो आप ये स्टैटिक पार्ट में से जो भी क्वेश्चन आएंगे आसानी से मैनेज कर पाओगे. सो दिस इज अबाउट जीए. ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, 30 मार्क्स, इसको अच्छे से करिएगा. ठीक है, फेज 2 करेंगे तो ये एरिया भी हो जाएगा. और स्कीम्स अब उतनी नहीं आ रही हैं जितनी पहले आती थी. ठीक है, और ये जीए पार्ट पे भी ज़्यादा रिलाई नहीं कर रहे हैं. ये बाकी बैंकिंग एग्जाम्स में ज़्यादा पूछा जाता है, बट आरबीआई में बहुत कम पूछा जाता है. ठीक है, सो दैट वाज अबाउट जीए एंड दीज आर दी सोर्सेज इफ यू वांट टू फॉलो देम. स्कीम्स आप पीआईबी से पढ़ सकते हैं, पीआईबी एक वेबसाइट है. रिपोर्ट्स आप पीआईबी और हिंदू न्यूज़पेपर से पढ़ सकते हैं. आरबीआई नोटिफिकेशंस फ्रॉम द आरबीआई वेबसाइट. फाइनेंस करंट अफेयर्स फ्रॉम लाइम मिंट एंड बिजनेस स्टैंडर्ड. ईएसआई करंट अफेयर्स फ्रॉम हिंदू एंड पीआईबी वेबसाइट. जो नॉर्मल करंट अफेयर्स हैं, स्पोर्ट्स अवार्ड्स, दैट्स ऑल कैन बी रेड फ्रॉम हिंदू न्यूज़पेपर. एंड स्टैटिक नॉलेज इज बेसिकली पार्ट ऑफ योर फेज 2 सिलेबस इटसेल्फ. So now let's move on to the phase 2. अब phase 2 में there is a syllabus which is given in the notification, but I want to tell you that the syllabus which is given in the notification is not the actual one. मतलब that syllabus is just indicative, that is not exhaustive. So do not just blindly follow that thinking के सारा पेपर इसमें से ही आएगा. शायद 80% आ जाए, but 20% के लिए आपको समझना पड़ेगा जो चीज़ें मैं आपको अभी बता रहा हूँ. सबसे पहले एफएम से शुरू करते हैं. एफएम में you have management and finance both contributing around 50 marks each. If I talk about management, ठीक है, ये आपका सिलेबस है ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन में दिया गया है. एंड दीज आर द मेन टॉपिक्स: मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, जनरल मैनेजमेंट, इमोशनल इंटेलिजेंस, पर्सनालिटी एंड परसेप्शन, कॉन्फ्लिक्ट, organizational change and reinforcement, corporate governance and ethics. All these are very generic topics. You can read them very easily and trust me, this is very limited syllabus. इतने ही चैप्टर हैं. देयर नो करंट अफेयर्स विच कैन स्पॉइल योर पार्टी. तो ये बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं. और इसमें एक ध्यान रखना, काफ़ी लोग ना बिल्कुल लाइन टू लाइन इसको पढ़ने लग जाते हैं कि यहाँ पे अगर कंटेंट थ्योरीज में यही 5 थ्योरीज दी गई हैं तो मैं छठी थ्योरी करूँगा नहीं. आप कोई भी बुक पढ़ेंगे उसमें शायद 10 थ्योरीज होंगी. तो क्या आपको ये 5 ही पढ़नी चाहिए? मेरे हिसाब से नहीं. इफ़ यू आर स्टार्टिंग नाउ यू शैल बी रीडिंग ऑल दी थ्योरीज, बिकॉज आई हैव सीन अगर कंटेंट थ्योरीज आ गया तो भले ही उन्होंने ये 5 नाम लिखे हैं, बट इन द एग्जाम दे कैन इवन आस्क यू फ्रॉम द 6th, 7th, 8th थ्योरी विच इज गिवन इन बुक्स बट नॉट गिवन हियर. तो बिल्कुल इसको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है. ठीक है, अभी फाइनेंस की बात करें तो फाइनेंस में स्टैटिक और करंट का ऑलमोस्ट इक्वल वेटेज है. ठीक है, और ऑब्जेक्टिव आएगा 50 में से 25 मार्क का, 25 मार्क का डिस्क्रिप्टिव आएगा. ऑब्जेक्टिव में स्टैटिक और करंट का ऑलमोस्ट 50-50 वेटेज है. डिस्क्रिप्टिव में स्टैटिक का कम वेटेज है, करंट का ज़्यादा वेटेज है. सो अगर ये वाला स्टैटिक जो ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव में आता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव में स्टैटिक पार्ट आता है, उसके लिए दिस इज योर सिलेबस. ठीक है, तो आपको ये सारे ही करना पड़ेगा. फाइनेंशियल सिस्टम इज मोस्टली अबाउट योर फाइनेंशियल सिस्टम, व्हाट आर द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, हाउ डू आरबीआई वर्क्स. ठीक है, ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम और उसमें क्या क्या क्राइसिस हैं, नॉन बैंकिंग सिस्टम कैसे काम करता है, आईटी का क्या रोल है फाइनेंशियल सिस्टम में. ऑल दिस यू वुड स्टडी इन दिस यूनिट. देन देयर इज अ यूनिट ऑन फाइनेंशियल मार्केट्स where you study about different financial markets like forex market, money market, bond market and all that. And then there are journal topics like risk management, derivatives, options, financial inclusion, public private partnership, corporate governance. तो 3 पार्ट्स में सिलेबस को डिवाइड किया गया है. ठीक है, इसमें आपको सारा ही पढ़ना रहेगा मेरे हिसाब से. सब कुछ इंपॉर्टेंट है बिकॉज इन डिस्क्रिप्टिव दे कैन आस्क यू क्वेश्चन फ्रॉम एनीथिंग दैट इज गिवन इन द सिलेबस. करंट की बात करें अगर ऑब्जेक्टिव में जो 13 मार्क्स का आ रहा है, इसके लिए आरबीआई नोटिफिकेशन एंड सेबी नोटिफिकेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. अर्लियर पीपल वर नॉट वेरी मच इन फेवर ऑफ डूइंग सेबी नोटिफिकेशंस, बट ये एग्जाम में बहुत अभी पूछी जा रही है. इनफैक्ट आरबीआई नोटिफिकेशन से ज़्यादा दे आर आस्किंग यू अबाउट सेबी नोटिफिकेशंस. अगर और भी फाइनेंस के करंट अफेयर्स हैं विच आर रिलेटेड टू योर फेज 2 टॉपिक्स सच एज डिजिटल बैंकिंग, फाइनेंशियल इंक्लूजन, रिस्क मैनेजमेंट, स्टॉक मार्केट, वो भी आपको पढ़ने रहेंगे. बाकी स्कीम्स अगर कोई मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की हैं, जैसे कि
जन धन योजना, सुरक्षा बीमा योजना, वो भी आपको पढ़नी रहेंगी फॉर द करंट अफेयर्स। एंड दीज आर सर्टन रिपोर्ट्स: इकोनॉमिक सर्वे, यूनियन बजट, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, आरबीआई एनुअल रिपोर्ट, करेंसी एंड फाइनेंस रिपोर्ट, रिपोर्ट्स ऑन ट्रेंड्स एंड प्रोग्रेस इन द बैंकिंग सेक्टर बाय आरबीआई। ये सारी रिपोर्ट्स आपको पढ़नी रहेंगी। इसमें से भी आपके करंट अफेयर्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इफ आई टॉक अबाउट डिस्क्रिप्टिव करंट, ठीक है, इसमें द रिपोर्ट्स रिमेन दी सेम जो मैंने अभी बताई। सो इन रिपोर्ट्स में से दे कैन आइदर आस्क यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और दे कैन इवन आस्क यू डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। सेम रिपोर्ट्स को हमने दोनों ओरिएंटेशन से पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव। प्लस you have to read editorials. I have seen lot of questions are being asked from the editorials. For example, in 2024 the question was asked on value investing and growth investing, which was a part of editorial in Economic Times. ठीक है, similarly 2023 में they asked you a question on open network for digital commerce, ये भी editorial से आया था. There was a question on UPI, ये भी editorial से आया था. So over the years you will see that lot of questions are being asked from editorials. रिपोर्ट से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे कि ये 5 डिजिटल की इनिशिएटिव्स यूज्ड इन यूनियन बजट, ये हमारे यूनियन बजट में से पूछा गया था. दैट्स व्हाई आई हैव इंक्लूडेड यूनियन बजट हियर अंडर डिस्क्रिप्टिव रिपोर्ट्स. ठीक है, अब हम आते हैं डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश पे. अगर मैं डिस्क्रिप्टिव ईएसआई पे, अब ईएसआई की बात करें तो ईएसआई में करंट का ज्यादा वेटेज है, स्टैटिक का कम वेटेज है. ठीक है, तो 100 मार्क्स का ईएसआई है, उसमें से ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव 50-50 मार्क्स का आएगा. स्टैटिक बहुत कम आता है, इनफैक्ट इट कैन बी 0 मार्क हियर. करंट का वेटेज ज़्यादा है, इट कैन बी 50 ऑल्सो आउट ऑफ 50. डिस्क्रिप्टिव में स्टैटिक 20 मार्क्स का आएगा, करंट अराउंड 30 मार्क्स का आता है. सो इफ आई टॉक अबाउट दिस स्टैटिक इन द ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव, this is your syllabus which is divided into 4 parts. Growth and development is all about measurement of growth, GDP, national income, poverty alleviation in India, sustainable development and environmental issues in India. Then Indian economy is about union budget, economic survey, industrial development in India, industrial policy in India. ये सारी चीज़ें हम इंडियन इकोनॉमी में पढ़ेंगे. Then globalization is all about balance of payments, regional economic cooperation, international economic institutions like IMF, World Bank, WTO. And then the 4th unit is about social structure in India, where we study about social issues like multiculturalism, education, health, urbanization, social justice, gender issues, migration and all that. तो चारों यूनिट पढ़ने हैं आपको. डिस्क्रिप्टिव में तो कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, ऑब्जेक्टिव में शायद क्वेश्चन आए ही ना, बट चारों यूनिट्स आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ने पड़ेंगे. इवन टू अंडरस्टैंड द करंट अफेयर्स यू नीड टू कवर द स्टैटिक पार्ट. अब इसमें ऑब्जेक्टिव में जो करंट अफेयर्स आते हैं अराउंड 45 to 50 मार्क्स के, उसके लिए गवर्नमेंट स्कीम्स जो मैंने आपको फेज 1 में बताई थी, सेम गवर्नमेंट स्कीम्स आपको यहां करनी है. रिपोर्ट्स जो मैंने अभी आपको बताई थी थोड़ी देर पहले, सेम रिपोर्ट्स आपने यहां करनी है. वही इकोनॉमिक सर्वे, यूनियन बजट, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट. ठीक है, ये सारी रिपोर्ट्स जो मैंने आपको फेज 1 में बताई थी, सारी स्कीम्स जो मैंने आपको फेज 1 में बताई थी, सेम स्कीम्स आपको करनी है. And ESI current affairs that I asked you to prepare for phase 1, you would have to do in phase 2. So if you would have prepared your current affairs for phase 1, you would automatically be ready for your ESI current affairs for phase 2. ठीक है, और डिस्क्रिप्टिव में जो करंट अफेयर्स आते हैं उसमें जर्नली या तो रिपोर्ट से क्वेश्चन आएगा, वही रिपोर्ट्स जो मैंने आपको फाइनेंस में बताई थी, मोस्ट ऑफ देम सेम, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, करेंसी एंड फाइनेंस रिपोर्ट, आरबीआई एनुअल रिपोर्ट, ट्रेंड्स इन प्रोग्रेस इन बैंकिंग इंडस्ट्री. ठीक है, सेम रिपोर्ट्स आपने करनी है. और एडिटोरियल्स भी आपको पढ़ने हैं ईएसआई के रिलेटेड दी हिंदू न्यूज़पेपर में से. मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाता हूं. जैसे 2024 में एक क्वेश्चन आया था ऑन चैलेंजेस ऑफ यूथ एम्प्लॉयमेंट, सो दिस वाज फ्रॉम इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट. देन देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन प्रायोरिटी टू विमेन लेड डेवलपमेंट, सो दिस वाज काइंड ऑफ आस्क्ड फ्रॉम द इकोनॉमिक सर्वे, उसमें एक सेक्शन था. Similarly, in the past, you would see question have been asked from currency and finance report. ठीक है, और ये माइग्रेशन वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट से क्वेश्चन आया था. वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट मैंने यहाँ पे ऐड किया, आप देखिए यहाँ पे ये. और जेंडर इक्वालिटी से क्वेश्चन आया था. जेंडर इक्वालिटी भी इज अ रिपोर्ट रिलेटेड टू योर सिलेबस, जेंडर इक्वालिटी, एनवायरनमेंट, पॉवर्टी, माइग्रेशन, अर्बनाइजेशन. तो अगर आप इसको फॉलो कर लो ना, मतलब ही नहीं है कि क्वेश्चन आपके किए से बाहर आ जाएगा. डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में
तीन चीज़ें आती हैं, एसे, प्रेसी, कॉम्प्रिहेंशन. इन एसे यू आर गिवन 4 टॉपिक्स, यू वुड हैव टू राइट एन एसे ऑन वन. One of the topic is either on economy or finance, such as mergers and acquisitions, demonetization, mental health, teamwork, and all that related to management. Then there is one or the other topic is on technology or internet, as in social media as a boon or bane, use of communication in use of social media in communication, ठीक है, use of AI in banking, all that. Then there are some topics related to social issues such as women empowerment, illiteracy, drug abuse, and all that. And one can be abstract, which is random. प्रेसीज आती हैं, किसी भी टॉपिक पे आ सकती है. कॉम्प्रिहेंशन भी किसी भी टॉपिक से आ सकता है. इट्स नॉट लाइक कि बैंकिंग पे ही आएगा, कोई भी रैंडम टॉपिक पे डाल सकते हैं. ठीक है. सो दिस इज़ योर सिलेबस फॉर इंग्लिश. इनफैक्ट इंग्लिश का ज़्यादा सिलेबस है ही नहीं. न्यूज़पेपर पढ़ो और थोड़ा बहुत कंटेंट प्रिपेयर करो. अब लास्ट चीज़ पे आते हैं, विच इज़ अबाउट द सैलरी. वी हैव डिस्कस अबाउट एलिजिबिलिटी, पैटर्न एंड सिलेबस. बहुत लोगों को सैलरी जानने में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, बट मैं ये बोलूँगा पहले काबिल बनो, सैलरी अपने आप मिलेगी. CTC अप्रॉक्सीमेटली 30 to 32 लैक्स है. मैं ज़्यादा ब्रेकअप में नहीं जाऊँगा बिकॉज आपको वो समझ नहीं आएगा. इन हैंड कम है. अगर मैं 30 लैक्स को डिवाइड करूँ 12 से तो 2.5 लाख बनता है. इन हैंड क्यों कम है भैया? आपका टैक्स कटेगा, आपका NPS भी कटेगा. सो ये 30-40 हज़ार आपका कट जाता है. हाँ, अगर आप HRA लेते हैं फिर तो आपको इतना इन हैंड आ जाएगा. लेकिन अगर आपने RBI का एकोमोडेशन ले लिया, RBI के घर हैं, आपने बोला कि मैं घर लूँगा, मुझे सीधा घर दे दो, तो ये HRA नहीं मिलेगा. तो ये 75K आपका कट जाएगा. सो दिस विल बिकम अराउंड 1.3 लैक्स, 35 लैक्स इंस्टेड ऑफ 2.5 लाख. तो ठीक है, ये कम तो हो गया, बट आपको क्या है यार, आपको मतलब RBI घर दे रही है, आप मतलब आपके बच्चों की एजुकेशन भी स्पॉन्सर कर रही है, आपको मेडिकल अलाउंस भी दे रही है, कोई बीमारी हो गई, मतलब ये पैसा तो आपका बचने ही वाला है 1.35 लाख. इसमें से आप 50-60 हज़ार और भी खर्च कर लोगे तब भी 70-80 हज़ार की आपकी सेविंग हो जाएगी. अब क्या आप कभी 1 करोड़ की सैलरी भी कमाएंगे? बहुत टाइम लगेगा. नॉर्मली 7-8 साल में सैलरी डबल हो जाती है. तो अगर आप 30 लाख पे स्टार्ट कर रहे हैं, शायद 16 साल बाद आपकी 1 करोड़ प्लस हो जाए. बट दिस इज़ दी फ्यूचर, राइट. अगर मैं इस 1 करोड़ को आज की टर्म में डिस्काउंट करूं, प्रेजेंट वैल्यू निकालूं कि आज इसकी क्या वैल्यू है, बिकॉज फ्यूचर में चीज़ें महंगी हो जाएंगी, तो शायद वो 40 लाख से ज़्यादा नहीं होगी. तो ये 1 करोड़ सुन के खुश नहीं होना है. ये एक नॉर्मल फिगर है जो आपको आज से 15 साल बाद मिलेगी. मतलब तब उस टाइम सारे ही जो होंगे इतना ही कमा रहे होंगे अगर आप आज 30 लाख पे स्टार्ट कर रहे हो. हाँ, रिटायरमेंट पे काफ़ी बेनिफिट्स हैं. एक अच्छी खासी पेंशन मिल जाती है. ठीक है, मतलब शायद हाफ ऑफ योर सैलरी भी हो सकती है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है. मतलब जो आपकी शायद बेसिक होगी उसका हाफ मिल जाएगा, तो काफ़ी हेल्दी पेंशन मिलेगी. और NPS में बहुत अच्छा कॉर्पस हो जाता है. मतलब आज की डेट में अगर आप NPS में 20,000 पर महीना भी डालते हो आप और एम्प्लॉयर मिलके, और 10-12% रेट है रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न, 30 साल आप जॉब करते हो, सो एट दैट एंड ऑफ 30 ईयर्स अराउंड 7 करोड़ कॉर्पस यू विल गेट. अगेन लुक्स लाइक अ वेरी गुड फिगर. रिटायरमेंट अच्छे से आपकी गुजर सकती है, बट ये बहुत ज़्यादा नहीं है. आज की डेट में 7 करोड़ बहुत है, बट 30 साल बाद इसकी वैल्यू ज़्यादा नहीं होने वाली है, तो ज़्यादा खुश मत होइएगा. ठीक है. So this is all I wanted to discuss about eligibility, pattern, salary, and syllabus. I hope you would have got a lot of clarity as in how to prepare for RBI and what you will get in RBI in terms of money satisfaction once you are there. Thank you. Have a nice day. Bye bye.